Hello, I am Shruti Sharma, and this is a special class on grammar and vocabulary. All right, so before we proceed, a bit about myself. I have done my MBA in finance. I have done my MA in English. I write CAT every year. I get a great percentile in the verbal section every time. I have been the verbal head in various institutes like Time, IMS, Career Forum, and I have more than 12 years of experience of teaching in this particular field. All right, this is my Telegram channel link, Shruti_cat. Okay, am I audible, first of all? Hello, Shagun, can you hear me? Hi. Okay, great, great. I'm seeing you after a long time, it seems. Is it so? Or am I mistaken there? Yeah, Shagun? What happened? Everything all right? All right, all right. I mean, you're all right, no? Like, all good, health-wise and everything, all good. Okay, perfect. Great. Hello, Ananya. Okay, so these are some of the subscription plans, Plus Plan and Iconic, and also something else is coming up that we'll be promoting, I think, a bit later on, where you can have like interaction with your teachers, spoken interaction as well. Okay, so these are the price points for Plus subscription, and you can get a 10% off if you use my code. My code is Sharmaji, and this is for Iconic. Again, you get a 10% off if you use my code Sharmaji. ऑल राइट, तो अभी हम ग्रामर भी देखेंगे और हम वर्ड्स भी देखेंगे, दोनों मिक्स करते रहेंगे। ऐसा नहीं है कि पहले वर्ड्स कर लिया फिर ग्रामर, पहले कुछ वर्ड्स करेंगे फिर थोड़ा ग्रामर करेंगे फिर से वर्ड्स करेंगे, सो दैट यू गाइस स्टे अलर्ट, दैट्स द आइडिया। तो चलो पहले ये जो आपको पेज दिख रहा है इसमें जो वर्ड्स दिख रहे हैं मुझे बताओ कि विच वंस डू यू ऑलरेडी नो द मीनिंग ऑफ, एंड बताइए किन वर्ड्स के मीनिंग्स आपको पता है। यस ऑफ कोर्स शगुन। Okay, you guys tell me which words do you already know the meanings of? Or is there any root जिनके साथ में जो भी words लिखे हैं आपको सबके meanings पता हो? Anthrope के सारे पता है ना? Because anthrope is human beings. Very good. And we have done earlier, anthropology is study of mankind, philanthropy is love for mankind, that is charity. Misanthropy is hatred of mankind. Anthropomorphic is in the shape or form of human beings. Anthropocentric is considering human beings to be the most important, considering human beings to be the center of everything. मैंने जल्दी जल्दी इसलिए बोला क्योंकि आप ये पहले कर चुके हो। अगर किसी को पूछना हो, if somebody wants to write down, tell me, I'll elaborate on it. Ben भी, you are right, Ben भी आपने किया है. Benign is kind, benevolent is kind, benediction is blessing, benefactor is somebody who gives you some benefit, beneficent is again kind. तो आधे वर्ड्स का मीनिंग तो kind ही है. ओके okay. अब ये देखिए belly, BELLI, that bell, belly, bell, that means war. Do you know the meanings of these words or any of the words here in the fifth one? Do share it. किसका मीनिंग पता है बताइए. Bell as a root means war, rebellious, right? So, of course, bell as a root means war, but all these words now are not exactly used in the context of war, but are more used in the context of fight. So, yes, rebellious or rebel is somebody who goes against the set pattern, one who goes against the set pattern, or one who goes against authority is a rebel. ज्यादातर टीनेजर्स के लिए कहा जाता है कि टीनेजर्स रिबेलियस होते हैं. सडनली दे रियलाइज दे हैव अ लॉट ऑफ राइट्स दैट दे नीड टू फाइट फॉर. उसके अलावा antebellum, can you guys tell me? ANTEBELLUM, what do you guys think would be the or is the meaning of antebellum? आपको क्या लगता है?
एंटीबलम का मतलब क्या है? नॉट पार्ट ऑफ ब्रेन। अच्छा, ANTE से सोचा होगा पार्ट ऑफ ब्रेन। देखो, बेल मैंने बताया ना, बेल इज रिलेटेड टू वॉर, और द रूट रिलेट्स टू वॉर। और मैंने जो कहा कि अभी एग्जैक्टली वॉर के सेंस में यूज नहीं होता है, फाइट के सेंस में यूज होता है, एज एन रिबेल इज आल्सो समबडी हु काइंड ऑफ फाइट्स, नो फाइट्स द सेट पैटर्न्स, फाइट्स अथॉरिटी। वैसे ही एंटीबलम, ओके, आई नो व्हाई यू थॉट हार्दिक दैट वन हु बिलीव्स इन पीस, पर वो मतलब नहीं है। यस शगुन, यू आर राइट। एंटीबलम इज बिफोर द वॉर, बिफोर द वॉर, क्योंकि ANTE एज अ रूट मीन्स बिफोर। और ब्रेन से आप जो रिलेट कर रहे थे, ANTE, वहां कैसे रिलेट होगा? क्योंकि जब एनिमल से ह्यूमंस की बात होती है तो फ्रंट पार्ट ऑफ द बॉडी जो होता है उसको ANTE कहते हैं, यानी बॉडी का जो पार्ट पहले आता है, दैट इज ANTE। ऑलराइट, सो antebellum is before the war. And ANTI has a different meaning. That's anti, that's also anti, or American pronunciation में anti. But जो भी हो, ANTI का मतलब होता है negative or against, whatever it is. Um, but ANTE is before. Okay. और ये देखिए, belligerent and bellicose दोनों words लिख लीजिएगा. They are used as adjectives. Belligerent and bellicose, both words mean somebody who is inclined to fight. Somebody जो झगड़ालू हो, somebody who is quarrelsome is belligerent or bellicose. लिख लीजिएगा. It was earlier, belligerent or bellicose was earlier used for kingdoms and countries that were always ready to go on wars. अभी of course तालिबान के लिए यूज होता है, the belligerent तालिबान कहते हैं, क्योंकि they are always ready to fight. So इन दोनों वर्ड्स का मीनिंग सेम है. क्या मीनिंग है? कोई सिनोनिम्स बता सकता है तो बताइए. नहीं बता सकते तो कोई बात नहीं, लिख लो. belligerent का एक सिनोनिम तो bellicose हो गया, right? Then another synonym is वही झगड़ालू, so quarrelsome. Then another synonym is, लिख लीजिएगा, truculent. Then another synonym is pugnacious. So ये वर्ड आया था. मुझे अभी अच्छे से याद तो नहीं आ रहा है सी मैट में या CT में, बट याद देयर वाज दिस वर्ड. एंड synonyms में ऐसे ही ऑप्शंस थे. द ऑप्शन वाज bellicose, then there was one option cute, one option dog. कंफ्यूज करने का तरीका कि अच्छा pugnacious, if a student looks at this word they might think it has to do something with pug, बट ऐसा नहीं है, एकदम ही अलग मीनिंग है, completely different. ऑल राइट, तो इन दोनों का मीनिंग सेम है. और बेलिजरेंट का पता है तो बेलिजरेंसी तो पता ही है. बेलिजरेंट इज एन एडजेक्टिव. शी इज बेलिजरेंट बाय नेचर, and belligerency is simply the abstract noun form of the word belligerent. As simple as that. No big deal there. चलिए, अब पहला वर्ड देखिए. या यस कुशाग्र, यू आर राइट. वोडा आइडिया भी आ सकता था एज एन ऑप्शन. ओके, सो पहला देखिए. Anim. As a root, it means mind, spirit, also breath. As a root. Unanimous क्या होता है? जब हम लोग सब, when all of us are united in our minds, यानी कि हम सब किसी पॉइंट पे अग्री कर रहे हैं, that is unanimous. तो यहाँ पे हम united होते हैं in our minds, as in all of us have the same view about something. Okay, unanimous is when everybody agrees. Yeah, the decision has to be unanimous. Even a ऑफ कोर्स, आई मीन जूरी वूरी की बात करें तो यूनानिमस नहीं देखा जाता है. देखा जाता है मेजोरिटी क्या मानती है. बट हम बहुत बार होता है कि क्लास में कुछ ओपिनियन लेते हैं एंड वी hope that we get a unanimous answer from the students, like everybody agrees on it. Pusillanimous is when somebody's spirit is weak, in the sense they are cowardly, कायर. All right.
एनिमोसिटी, ये वर्ड तो पहले काफी बार किया है। एनिमोसिटी वो होता है जब हम एक्चुअली किसी के अगेंस्ट होते हैं, किसी हमारा मन किसी के अगेंस्ट होता है, हम किसी के साथ एनिमी की तरह बर्ताव करते हैं, वी फील हॉस्टिलिटी टुवर्ड्स समवन, दैट इज एनिमोसिटी। सो एनिमोसिटी इज हॉस्टिलिटी और दुश्मनी। Another word for that in English would be enmity. So for animosity, you guys can write down hostility और enmity. दुश्मनी को क्या बोलते हैं? Enmity. देन एक और वर्ड किया है, एंटीपैथी। इवन दैट इज एनिमोसिटी, एंटीपैथी। ये भी लिख सकते हो, यहाँ पे ANTI आएगा। ये देखो, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा था ना ANTE एंड ANTI में। सो एंटीपैथी इज ANTIPATHY। सो यहाँ how does it relate to animosity? Because path as a root, it means feelings, and anti मतलब negative, so negative feelings, animosity। ठीक है। मैग्नानिमस वो होता है जिसका स्पिरिट बहुत ही दयालु हो। सो somebody who has a very big heart is magnanimous. So if you're magnanimous, that means you can be generous. Generous as in somebody asks you for something, आपने आपका कुछ, let us say you are magnanimous at heart, तो आप कॉलेज जाते हो एंड सम फ्रेंड ऑफ योर्स इज लाइक तुम्हारा पेन बहुत अच्छा है, आप दे देते हो, ओके कीप माय पेन, इट्स ऑल राइट। फिर आप लोगों को बड़े आसानी से माफ कर देते हो, यू डोंट कीप ग्रजेस, यू easily kind of pardon people, you forgive them, so you're magnanimous, you have a big generous heart. इक्वानिमिटी इज जब हमारा स्पिरिट एकदम शांत हो, हमारा दिमाग एकदम शांत हो, दैट इज इक्वानिमिटी। सो इक्वानिमिटी इज कामनेस, व्हेन, अरे मैग्नानिमस बड़ा पॉजिटिव वर्ड है, रिच ब्रैट तो नेगेटिव हो जाएगा ना। मैग्नानिमस तो वो हुआ जो आपके पास जरूरी नहीं है कि बहुत सारे पेन्स हैं, एक ही है और फिर भी किसी ने कहा बड़ा अच्छा है और आपने दे दिया, दैट इज मैग्नानिमस, जनरली हैविंग अ बिग हार्ट। अ रिच ब्रैट, आई मीन ब्रैट के साथ तो मैग्नानिमस नहीं जाएगा, कॉन्ट्रडिक्टरी हो जाएगा। तो इक्वानिमिटी, सी दिस इज कोई गौतम बुद्ध का पिक्चर, महावीर जैन का पिक्चर, वो सब आप देखो तो uh, you can see magnanimity and equanimity, right? तो ये गौतम बुद्ध के पिक्चर्स में आपको क्या देखने को मिलता है? इक्वानिमिटी देखने को मिलता है, कामनेस देखने को मिलता है। किसी भी कोई भी मेडिटेशन का पोज अगर आप किसी का देखो तो उसमें क्या देखने को मिलता है? इक्वानिमिटी। बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज फॉर अस ऑल्सो वी शुड always try to maintain our equanimity. That means peace of mind, balanced mind, बहुत hyper नहीं होना, balanced spirit, hyper nahi hona, that is equanimity. Acha, now you guys tell me what would be the meaning of thank you, Hardik. That's a nice compliment. What is the meaning of imperturbable? Equanimity, I'm sorry, makes you imperturbable. What does it mean? Hello, ये नाम क्या है? uh, what's this name? ये दिल मांगे क्या? What's your name? चलिए, imperturbable is क्या? Perturb is to disturb. Perturbed is disturbed. Imperturbable would be one who doesn't get disturbed, one who is not bothered easily. बहुत ही अच्छा सेंटेंस है, आप लोग भी ध्यान दीजिएगा। Equanimity, if you are able to attain that state of equanimity in your life, then you will not be easily bothered by things. You will not be easily perturbed by things. You will be more peaceful. You will be more calm. तो लिख लो, imperturbable भी एक वर्ड आ गया, ये सेंटेंस भी लिख लीजिए। Imperturbable is one who cannot be easy, one who cannot be bothered, one who cannot be worried. You can't easily worry them out. Okay, that kind of a person is imperturbable. All right. I'm waiting for you guys to write down. पता चला मैं बोलती गई और आप लोग कुछ लिख ही नहीं पा रहे हैं. So what's the point? लिख लिया? Then I'll move on. You guys should also try making sentences.
शेरशाह मूवी देखा है क्या मैंने? शेरशाह मूवी एक्चुअली आज ही जब व्हेन आई वाज हैविंग माय लंच नो, तो माय फैमिली मेंबर्स वर वाचिंग आई थिंक नेटफ्लिक्स पे या किसी पे, तो टीवी पे लगा के तो मैंने बस कितना देखा, शुरुआत का देखा। आई मीन देयर वर टू किड्स, ट्विंस, दे वर फाइटिंग वाला, और थोड़ा सा टेड टॉक का पार्ट देखा। उसके बाद वहां आया तो सिद्धार्थ मल्होत्रा, ही गोज टू JNK, मतलब हाँ amazon प्राइम पे लगा होगा। आई डोंट नो, आई डिड नॉट इवन नोटिस। तो या पता नहीं नेटफ्लिक्स amazon प्राइम किस पे देख रहे थे, तो वहां तक मैंने देखा, फिर लंच ओवर हो गया, दूसरे क्लास का टाइम हो गया, तो मैं नहीं देख पाई। All right, I hope you guys have written these words. Like I said, I'll keep it mixed ताकि हेवी ना हो जाए। अच्छा ये देखो, ये क्या है? What is this picture representing? Can anybody tell me? Because that word I did not dwell on it because हमने पहले भी किया है। A word related to anthropo. Can you tell me what word do these pictures represent? It's a word related to anthropo. Anthropo आपने किया है, क्या word होगा? ये देखो, this is in the shape or form of human being, no? अरे anthropology is study. LOGY is usually, not always, कुशाग्र, usually LOGY is study. तो एंथ्रोपोलॉजी तो हो जाएगा स्टडी ऑफ मैनकाइंड। ये अगर आप देखो, ये एनिमल्स हैं बट दे आर इन द, दे हैव बीन पोर्ट्रेड एज ह्यूमंस। सो उसके लिए क्या वर्ड था? इन द शेप और फॉर्म ऑफ ह्यूमन बींग्स, फॉर दैट द वर्ड इज एंथ्रोपोमॉर्फिक। सो दीज आर anthropomorphic images, when something else, something that is not human, is represented in the shape or form of human beings. That's anthropomorphic. आपके लिए एग्जाम्पल है यहाँ पे, ऑफ कोर्स बाद में डाउनलोड कर लेना, भूलना मत क्या वर्ड था। विच इजिप्शियन फिगर्स? या कुशाक, कौन से इजिप्शियन फिगर्स? विच वंस? ऑलराइट, ओके, या उसके अलावा अगर आप देखो तो फील्ड्स में, खेत जो होते हैं, फार्मर्स, दे आल्सो कीप स्केयर क्रोज टू स्केयर अवे द बर्ड्स। तो वो स्केयर क्रोज होता तो है, बस कुछ स्टिक लगा रहता है और उसके ऊपर एक मटका रहता है सर की जगह, बट बर्ड्स को लगता है कि ह्यूमन बीइंग है। तो स्केयर क्रोज आर आल्सो एंथ्रोपोमॉर्फिक, दे आर इन द शेप और फॉर्म ऑफ ह्यूमन बीइंग्स। ऑलराइट, ओके, चलिए थोड़ा सा ग्रामर देखते हैं, फिर वर्ड्स पे वापस आते हैं थोड़ा सा ग्रामर करके। These are some questions for you. तो ये 7 questions करेंगे, then we will go back to words. I am deliberately keeping it mixed. Okay? आपको बताना है कि what are the errors in these sentences? We can't do a poll because there are no options. That's the point. You have to read the sentence, analyze it और देखना है कि क्या errors हैं। और नहीं पता चलेगा, मैं बताऊंगी तो प्लीज राइट डाउन द रूल दैट इट रिलेट्स टू। समटाइम्स इट्स जस्ट रिलेटेड टू कि ऐसा ही होता है, इस वर्ड के बाद ये प्रपोजिशन आता है। समटाइम्स देयर रूल। सो ओके, नाउ आई विल बी क्वाइट, ऑल ऑफ यू एनालाइज द फर्स्ट वन, see if you're able to figure out the error or not. कुछ नहीं आ रहा है, किसी का नहीं आया क्या? एक आंसर आया इवेंचुअली। ठीक है, आई थिंक टाइम टू डिस्कस। यस तन्मय, योर आंसर इज करेक्ट।
The shiny new cars and the spacious stations of the city's first subway system are certainly impressive. तो पहले मैं चेक करूंगी ये R ठीक तो है ना? What is the subject? Shiny new cars and stations. हाँ, plural है, so R is correct. आगे देखते हैं. But the number of delays are annoying and inexplicable. As annoying and inexplicable as we feared. सही है. As के साथ as आता है, तो ये भी करेक्ट है. बट करेक्ट है क्या दोनों के बीच? हाँ, क्योंकि हम कह रहे हैं कि द कार्स एंड द स्टेशंस आर इम्प्रेसिव, पर डिलेज आर अनोइंग एंड इनएक्सप्लिकेबल. तो बट इज ऑल्सो करेक्ट. तो गलत क्या है? लाइक तन्मय, यू गॉट इट. यहाँ पे लिखा है द नंबर ऑफ. सो वेन एवर यू हैव द नंबर ऑफ, उसके साथ वर्ब प्लूरल नहीं होता है, सिंगुलर होता है. सो इट शुड बी द नंबर ऑफ डिलेज is as annoying and inexplicable as we feared. So remember, whenever you have the number of, all of you write it down, the number of in the subject part of the sentence, the subject meaning wise becomes singular. So even if I say the number of, let us say the number of students is, okay, the number of students is, not the number of students are. The number of students is 20. The number of students are 20? No, the number of students is. But हाँ, अगर a number of आया, a number of students, then it should be are. A number of का मतलब होता है many. सभी लोग लिख लो, write it down, then I'll move on. I am assuming कि आपने लिख लिया होगा. चलिए, try out the second one. Everyone but Sally and she is waiting on tables. All right, Kushagra, you're saying instead of but, it should be except. Okay. What about the rest of you? What do you guys think? Yes, Suraj, we are on question number 2. All right. So again, I see not many answers forthcoming here. तो देखिए, क्योंकि यहाँ पे बट आया है ना, बट के बाद नाउन हो या प्रोनाउन हो, वो सब्जेक्ट फॉर्म में नहीं होता है, ऑब्जेक्ट में होता है. नाउन के लिए तो कोई टेंशन नहीं है, बिकॉज सैली सब्जेक्ट हो तो भी नाउन सैली ही रहेगी, ऑब्जेक्ट हो तो भी सैली रहेगी. एनी नेम, यू नो, all of our names, if we are the subject in a sentence, it would be the same, object would be the same. Pronoun use करते तो change हो जाता है. So she is the subject form, इसका object form है her. Everybody knows the answer, but I नहीं, but me. All right. तो लिख लो, but के बाद अगर आता है तो प्रोनाउन ऑब्जेक्ट फॉर्म में आता है, सब्जेक्ट फॉर्म में नहीं. लिख लीजिएगा. ये सारे लिखते रहना, डोंट जस्ट रैंडमली मूव ऑन. थर्ड देखिए, द क्राफ्टिंग ऑफ मिनिएचर enamel boxes which was so popular 2 centuries ago have been revived in England with great commercial success. So please guys try it out. The third one, अच्छे से एनालाइज करो, हर पार्ट को एनालाइज करो, हर सब्जेक्ट को फिगर आउट करो, उसके साथ क्या वर्ब है देखो, देखो whether they are in alignment or not.
ओके, हाउ मेनी ऑफ यू हैव, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आई हैव ऑलवेज स्ट्रेस्ड ऑन दिस. कौन सा टॉपिक? सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट. हाउ मेनी ऑफ यू एज इन यू कांट रेज योर हैंड्स, आई मीन. ओके, इंडिविजुअली बताइए किस किस ने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट अभी तक नहीं किया है. हमने पढ़ा तो बहुत ही डिटेल में था. द वीडियो वाज इन, इट वाज अ प्रीटी डिटेल्ड वीडियो. हाउ मेनी, हु हैज नॉट डन इट? इस पे मुझे पोल कराना चाहिए. एंड हु हैज डन इट? जल्दी से बताइए, यस नो लिखिए. सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट किया है या नहीं किया है? ऑलराइट. दोज ऑफ यू हु हैव नॉट डन सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट ना, आपको होता है ना कि कौन से ऑर्डर में क्या करें. आई वुड सजेस्ट अभी ग्रामर के लिए स्पेशल क्लासेस में आप देखो, लिस्ट में होगा. है, होगा क्या है. सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, सब्जेक्ट प्रोनाउन एग्रीमेंट, वो आप आई मीन वॉच दैट वीडियो. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट. ओके, और उसमें बहुत सारे रूल्स किए हैं, सो प्लीज गेट इट डन. अभी देखिए, क्वेश्चन नंबर 3. The crafting of miniature enamel boxes, which were so popular 2 centuries ago. Popular क्या थे? Which किसके लिए? Boxes के लिए. तो correct है. Boxes plural है, enamel boxes. So which were popular is correct. 2 centuries ago. Have been revived. This have been revived is for the first part of the sentence. What is the first part? The crafting of miniature enamel boxes. So क्या रिवाइव हुआ है? बॉक्सेस रिवाइव नहीं हुए हैं, उनका क्राफ्टिंग रिवाइव हुआ है. क्राफ्टिंग इज द सब्जेक्ट. So it shouldn't be have because have is plural. It should be has. The crafting of miniature enamel boxes has been revived in England with great commercial success. All right, has been revived. क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट है क्राफ्टिंग. अगर आप डिटेल में जाओ सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट में और आपको मीनिंग से समझना आए, तो व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड इज दैट इफ द वर्ड इज कमिंग आफ्टर preposition और इफ इट इज कमिंग आफ्टर एन एक्शन, तो वो सब्जेक्ट नहीं होगा, वो ऑब्जेक्ट होगा. ऑलराइट, सो ये मिनिएचर एनामल बॉक्सेस ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट नहीं है. whereas जो मेन फ्रेज होता है, the verb in the main phrase has to agree with the subject and the subject is crafting. Okay, next try कीजिए. He cannot run as quick as me. Okay, as fast as me, all right. Okay, as quick. He cannot run as quick as I, all right. What else? इसमें multiple errors हैं. So yeah, one as quick as me तो नहीं होगा. Run के लिए use हो रहा है. So quick is an adjective. इसका adverb form होता है quickly या फिर simply fast. So आप कह सकते हो he cannot run as quickly और he cannot run as fast. As comparison है, हमने पहले किया था. When there is comparison, object नहीं आता है, क्या आता है? Subject. So he cannot run as quickly as I can. Last भी हमने जो spot the error किया था, we had done something similar there as well. So he cannot run as quickly as I can or he cannot run as fast as I can. चलिए आगे बढ़े. कुछ डाउट हो तो पूछ लेना, otherwise let's move on. Fifth one. We were all ready to leave for the amusement park when John's car broke down and we were, sorry, semicolon, we were forced to postpone our outing. बताइए. ओके, आप लोगों का आंसर नहीं आ रहा है फिफ्थ के लिए, तो अब आप लोग मुझे बताओ, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑलरेडी एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑल रेडी. पहला वाला क्या है?
पहला वाला एडवर्ब है। ऑलरेडी जो पहला वर्ड है उसका मतलब होता है पहले से ही, राइट। जैसे कि मैं मान लो सडनली अभी मैं पढ़ाने लगूं सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट, तो तन्मय विल से मैम you have already taught us that topic. Okay, you have already taught us that topic, है ना। That's already, पहले से ही। और already क्या होता है? सभी तैयार, सभी तैयार। We are all ready to go out, है ना। आई होप इट्स क्लियर। ये दोनों भी कंफ्यूजेबल्स में आते हैं, कंफ्यूजिंग वर्ड्स में आते हैं। आई होप इट्स क्लियर टू यू गाइस। सो यहाँ पे वी वर ऑलरेडी टू लीव नहीं, हम पहले से टू लीव, नो मीनिंग। वी वर ऑल रेडी टू लीव, वी वर ऑल रेडी, ये हम सब तैयार थे टू लीव। ए और पहला ऑलरेडी क्या आता? वी वर ऑलरेडी लीविंग व्हेन शी केम, है ना, हम पहले से ही निकल रहे थे जब वो आई। पर यहाँ पे हम सब तैयार थे टू लीव, ऑल रेडी। आगे बढ़ते हैं, बताइए द नेक्स्ट वन। None of these boys read so well as him. अब तो बता दो, ये तो हो गया। Yeah, none of these boys read as well as he does or he can, right? He does as in he reads. None of these boys read as well as he does or he can. All right? The purpose of all these chapters and tests are to teach you correct grammar. हाँ, ये तो बहुत ही true sentence है. That's the agenda. बताइए. Very good. Perfect. Very good. चलिए. Now all of you are getting this. Yes. So chapters and tests का purpose नहीं है. I'm sorry. Chapters and tests are teaching you correct grammar नहीं. Purpose है to teach you correct grammar. Purpose is the subject. Purpose के साथ आएगा is. And these chapters and tests क्या है? Object है. Object of preposition. So the purpose is to teach you correct grammar. So is perfect. बट मैंने सोचा था ये क्वेश्चंस करके वापस वो कैप पे जाएंगे, बट नाउ दैट यू गाइस आर गेटिंग अ हैंग ऑफ इट, तो 7 और क्वेश्चंस कर लेते हैं एंड देन विल गो बैक टू वोकैब। लेट्स डू 7 more questions and then let's go back to vocabulary. All right. Either modern dance or classical ballet are useful for strengthening concentration, toning up the muscles, and creating a sense of poise. Yes, कुशाग्र पिछले क्वेश्चन में ना, नहीं किसके लिए यू आर आस्किंग? Yes, it should be is useful. Correct. क्यों? क्योंकि जब आइदर और होता है तो हम देखते हैं कि जो वर्ब है, वर्ब क्या है यहाँ पे? ये वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब आर जो लिखा है। आप देखते हो इसके पास में कौन सा सब्जेक्ट है? इसके पास में डले,
which is singular, so it should be is. Perfect. Is. चलिए next बताइए. This was the nicest house I have ever been. Theirs was the nicest house का मतलब उनका घर. You know, when you're saying their, THERE, तो आप point out करो their, वहाँ. पर theirs, उनका, उनका was the nicest house I have ever been. Yes, Tanmay got an answer. They had the nicest house I have ever been. चलो मैं for the rest of you, let me ask you this. मैं एक sentence लिखती हूँ, बताइए correct है या नहीं. Have, और आप लोग हाँ ना में आंसर भी देना, as in मेरे क्वेश्चन का. Have you been मनाली? ये करेक्ट है क्या ये क्वेश्चन ग्रामेटिकली? हैव यू बीन मनाली? नहीं. सबको दिख रहा है ना क्या गलत है? हैव यू बीन, हैव यू बीन टू मनाली, राइट? हैव यू बीन टू मनाली, करेक्ट. क्लियर है? ये साथ में लिख लो एज अ पैरेलल स्टेटमेंट. हैव यू बीन टू मनाली? सिमिलरली, theirs was the nicest house I have ever been to. टू मिसिंग था in the second one. मनाली वाला तो आप लोगों ने खुद बता दिया. तन्मय had got the answer, and the rest of you also got it when I asked you about Manali. Yeah, never been to Manali though, is it? All right. Okay. आगे बढ़ते हैं फिर. तो ट्राई, और ऐसे भी पता है मनाली, ऑफ कोर्स नेचुरली इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल प्लेस, बट इतना ज्यादा ह्यूमन इंटरवेंशन इतना ज्यादा हो चुका है कि इट्स वेरी डिफिकल्ट. यस, हार्दिक गॉट द नेक्स्ट वन. द टीचर एंड हिज असिस्टेंट along with the principal grades the final exams. तो जब भी ये कंजंक्शन यूज होता है along with, हम देखते हैं कि उसके पहले क्या सब्जेक्ट आया है. द फर्स्ट सब्जेक्ट तो ये पूरा है. द टीचर एंड हिज असिस्टेंट, which is plural, like Ram and Shyam, Tom and Jerry. So Tom and Jerry plays टेबल टेनिस होगा या प्ले टेबल टेनिस होगा? Tom and Jerry play TT, right? Similarly, teacher and his assistant grade the final exams. Great. Plural subject, plural verb. Verb में जब s नहीं लगता है तब वो plural होता है. Grade is plural, whereas grades is singular. In terms of a verb में ऐसा होता है. Noun में नहीं, of course. All right. कुछ डाउट हो तो बताना, नहीं तो आगे बढ़ते हैं. Brilliant in concept and original in staging, the performance nonetheless offered less and less reasons as the evening wore on. Evening wore on मतलब जैसे जैसे शाम आगे बढ़ी, for us to invest in the production. Okay, Shark Tank. एक्चुअली यहाँ पे मैं शांति से इसलिए बैठी हूँ कि आप इसके हर
एस्पेक्ट को एनालाइज कर लो ब्रेक डाउन करके. ब्रिलियंट इन कॉन्सेप्ट, ओरिजिनल इन स्टेजिंग. क्या है ब्रिलियंट इन कॉन्सेप्ट एंड ओरिजिनल इन स्टेजिंग? द परफॉर्मेंस. तो ठीक है, मॉडिफायर एरर नहीं है क्योंकि परफॉर्मेंस को ब्रिलियंट ओरिजिनल बताया गया है, और उसके जस्ट उस मॉडिफायर के बाद तुरंत परफॉर्मेंस आया तो वो भी करेक्ट है. द परफॉर्मेंस nonetheless offered lesson-less reasons. ठीक है, lesson-less reasons भी करेक्ट है. As the evening wore on, modifier again, lesson-less reasons for us to invest in the production. करेक्ट है, invest के साथ in आता है. Reasons for us to, करेक्ट है. So if you break it down, there's nothing wrong in the sentence. It's already correct. कुछ गलत नहीं था. तो हम आगे बढ़ते हैं. Will any fifth पे आते हैं. The previous one was completely correct. The fifth one. Will any member who has not done so please cast their votes now? Any member, singular. Any member is a singular verb. I'm sorry, a singular subject. Will any member who has not done so, मतलब जिसने अभी तक नहीं किया है, प्लीज कास्ट, उनका वोट्स नाउ, यानी उनका खुद का वोट्स. एनी मेंबर इज सिंगुलर, सो उसके साथ आप क्या प्रोनाउन यूज करोगे? देयर इज अ प्लूरल प्रोनाउन. सो देयर यूज नहीं कर सकते हैं. व्हाट वुड यू यूज? आप हिज भी यूज कर सकते हो, पर हिज वोट्स नहीं, हिज वोट. यूजुअली हिज ही यूज करते हैं, या फिर हर वोट. दोनों में से आप कुछ भी करो, आंसर करेक्ट हो जाएगा आपका. दिस आई रिपीटेड मेनी अ टाइम्स कि हाँ, हम जब कॉन्वर्सेशनल इंग्लिश करते हैं तो उसमें एनी मेंबर ये सब जब यूज होता है तो उसके साथ हम देयर यूज कर देते हैं, जस्ट टू स्टे जेंडर न्यूट्रल, ताकि सामने सुनने वाले को बुरा न लगे. हिज कहेंगे तो लड़कियों को बुरा लग सकता है, हर कहेंगे तो लड़कों को बुरा लग सकता है, तो हम देयर कह देते हैं. बट दैट इज एक्चुअली ग्रामेटिकली इनकरेक्ट. सो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको जानना है कि इट इज सिंगुलर, तो आपको सिंगुलर प्रोनाउन यूज करना होगा उसके साथ, which in this case would be his or her, whichever you want to use. Both ways it's all right. आपको पता होगा कि टिल अबाउट द 90s, ये हाँ, ये भी सुन लो. टिल अबाउट द 90s क्या हो रहा था? 90s में इसलिए कह रही हूँ क्योंकि उस समय मैं स्कूल में थी. ज्यादातर न्यूज़पेपर आर्टिकल्स में जब एक न्यूट्रली किसी के लिए बोला जाता था, किसी भी जेंडर के लिए, तो ही यूज होता था. किसी इंसान की बात हो रही है तो ही यूज होता था. एंड दैट ही वुड रिप्रेजेंट एनी मैन और एनी वुमन. बट उसके बाद ये 90s के बाद हुआ है, 2000s में शुरू हुआ है कि बहुत सारे राइटर्स क्या करने लगे कि वो फ्रीडम ऑफ चॉइस के थ्रू दे स्टॉप यूजिंग ही, दे स्टार्टेड यूजिंग शी. न्यूज़पेपर आर्टिकल्स में भी, एडिटोरियल्स में भी, तो वहां पे शी वुड रिप्रेजेंट एनी मैन और एनी वुमन. तो अब है कि प्रेरोगेटिव आपका है, मतलब आपको जो ठीक लगे आप वो यूज करो. ये मैं क्यों अभी बता रही हूँ? क्योंकि आप सबको ऐसे राइटिंग करना होगा. आप जब कैट लिखोगे उसके बाद व्हेन यू आर सेलेक्टेड फॉर द आईएएम्स, तो वहां पे रिटन एबिलिटी टेस्ट होता है, और वहां पे आपको न्यूट्रल टॉपिक्स मिल सकते हैं जिसमें यू माइट हैव टू यूज व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट अ ह्यूमन बीइंग. तो वो फिर आपका प्रेरोगेटिव है. ऐसा कोई रूल नहीं है कि ही यूज कर सकते हो या केवल शी. कोई भी एक यूज करो एंड स्टिक टू दैट, either he or she, whichever you want to. Yes, Kushagra, even in group discussion you can use either he or you can use she. ग्रुप डिस्कशन में देख लो मॉडरेटर क्या है. मॉडरेटर अगर आदमी है तो ही करके यूज करना, और मॉडरेटर अगर औरत है तो शी करके यूज करना. ओके, तो न्यूट्रली ईदर कैन बी यूज्ड. चलिए आगे देखते हैं. इंस्पायर्ड बाय द थियरीज ऑफ फ्रेंच फिलोसोफर्स, the ringing phrases of the Declaration of Independence testifies to an idealistic view of man's potential as a social animal.
सिक्स्थ में मैं आपको एरर टाइप बता देती हूँ, उसके बाद आप एटलीस्ट मुझे बताइए कि क्या करेक्ट आंसर होगा। ऑल राइट, नो नीड फॉर मी टू टेल यू द एरर टाइप, आंसर्स आने लगे। अच्छा, दो आंसर्स आए। सो या, सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट अगेन. What testifies to an idealistic view of man's potential? The ringing phrases of Declaration of Independence. So this is the subject. The ringing phrases. So testifies नहीं होगा, क्या होगा? Testify. Because phrases is plural. Ringing is the adjective. So the subject is plural. With plural subject, we use plural verb to testify. Seventh बताइए. Seventh तो बता दीजिए. All of you answer the seventh one. Correct. Very good. Again, Tanmay and Hardik got that. Such rules do not apply to. तो apply हो गया हमारा action word, which means verb, main verb, और to हो गया preposition. So मतलब double whammy है basically. preposition के बाद pronoun subject form में नहीं आता है, object form में आता है. You तो subject हो या object हो, it's always you, but I is a subject. इसका object form क्या है? Me. So because we have apply to here, apply is the action, to is the preposition, so it should be such rules do not apply to you and me. डाउट है तो बताइए, कोई नहीं बोल रहा है कि डाउट है. आंसर्स ओनली couple of you are giving me the answers and then nobody is telling me what doubts do they have. नहीं है तो चलते हैं. ओके, कहाँ चलते हैं? वापस वोकैब्युलरी पे चलते हैं थोड़ा. एंथ्रोपोमॉर्फिक, राइट. ओके, नाउ यहाँ पे तो बता दो, ये मीनिंग्स बताइए. दीज आर वेरी कॉमन वर्ड्स, द वर्ड्स विद ओमनी. चलो, टेल मी द मीनिंग्स. पिचिन. ओमनी क्या होता है? ऑल. व्हाट इज omnipotent? या गॉड इज एन एग्जाम्पल. गॉड इज omnipotent हम कहते हैं, but God is an example of that. Yes. Omnipotent is all powerful, right? Having all the powers. Correct. अच्छा ठीक है. Potent is omnipotent is all powerful. Yes, Shagun, correct. Because potent का मतलब क्या होता है? Potent का एक मतलब होता है powerful in the sense कि हम किसी drug के लिए बोलते हैं. It is potent. It also means effective or efficient. So it's a potent drug. It is a strong drug. It is effective. ओके तन्मय, व्हाट्स द क्वेश्चन? इन्वेस्टमेंट वाला सेंटेंस जिसमें देयर वाज नो एरो, उसका मीनिंग इज द इन्वेस्टर्स हैव लेस रीजन टू इन्वेस्ट. ओके, वेयर इज द इन्वेस्टमेंट वाला सेंटेंस? लेट्स सी. यस, करेक्ट. क्योंकि देखो, नंदलेस भी आया ना. नंदलेस शोज कॉन्ट्रडिक्शन. आपको ओके, आई आई गेट योर डाउट. मे बी ये डाउट हो शायद आपको कि लिखा है ब्रिलियंट इन कॉन्सेप्ट एंड ओरिजिनल इन स्टेजिंग, तो व्हाई डू दे हैव लेस रीजन टू इन्वेस्ट? पर यहाँ ऑथर खुद ही बोल दिया तब ब्रिलियंट था, ऐसा अच्छा था, फिर भी nonetheless shows contradiction. The performance offered less and less reasons for us to invest.
तो आई थिंक नॉनदलेस पे आप ध्यान दो तो क्लियर हो जाएगा। शायद आपको इसलिए डाउट आया हो कि इतना बड़ा ही किया तो फिर मोर रीजन होना चाहिए। पोटेंट पे हम थे, तो पोटेंट ड्रग कहते हैं, एंड ओमनीपोटेंट इज ऑल पावरफुल, गॉड इज एन एग्जाम्पल। नेक्स्ट बताइए। omniscient, OMNISCIENT, omniscient is very good, and all of you can figure it out क्योंकि omni is all and SCI, ये देखो SCI क्या होता है, to know, so omniscient कौन होगा, one who knows everything, correct, like Google। पहले तो एग्जाम्पल पढ़ते थे कि गॉड अगेन ऑफ कोर्स, बट नाउ तो गूगल आल्सो नोज एवरीथिंग, और मे बी एलेक्सा। एलेक्सा एलेक्सा इज omniscient, she seems to know everything। omnipresent क्या हो गया, one who is present everywhere। give me an example of something that is omnipresent। present everywhere, हाँ गॉड तो है, omni के सारे वर्ड्स के लिए गॉड इज वन एग्जाम्पल। गॉड इज omnipresent, omnipotent, omniscient। मैटर, ओके, या एंटी मैटर का तो अभी क्लैरिटी ज्यादा है नहीं, तो मैटर वुड बी omnipresent, एनर्जी इज omnipresent, perfect, एयर इज omnipresent, all right, वेरी गुड। इसके लिए एक सिनोनिम लिखिए। वैक्यूम इज ओके, सिनोनिम लिखिए यूबिक्विटस। किसका सिनोनिम है, omnipresent का, यूबिक्विटस, UBIQUITOUS, ubiquitous। And of course, omnivorous is one who eats everything. Man, human beings are omnivorous because हम दोनों डाइजेस्ट कर सकते हैं, प्लांट्स भी और एनिमल्स भी, हमारा पेट सब कुछ पचा सकता है। सो ह्यूमन बीइंग्स आर omnivorous, of course some of us are vegetarians, some are non vegetarians, but generally as a species we are omnivorous क्योंकि हमारा बॉडी दोनों चीजें इनटेक कर सकता है, दोनों चीजों को टॉलरेट कर सकता है, whether it's वेज और if it's नॉन वेज। ओके, चलिए, एनी अदर वर्ड विथ omni? What is omnibus? OMNIBUS, omnibus क्या होता है? सो omnibus उस किताब को कहते हैं जिसमें दे आर मल्टीपल वर्क्स और ऑल वर्क्स ऑफ द सेम ऑथर। जैसे अगर मैं एक हैरी पॉटर omnibus खरीदती हूँ, दैट मीन्स कि वो एक मोटी सी किताब में हैरी पॉटर के सारे जो इंडिविजुअल वॉल्यूम्स है ना वो होंगे, द ऑथर ऑफ कोर्स बीइंग जेके रॉलिंग, so that would be an omnibus। और anthology होता है when a book has stories or write-ups, or a big book has books by different authors, that's anthology। omnibus is it will have works of the same author। ठीक है, पैन देखिए और बताइए इन वर्ड्स के मीनिंग्स, किसी का भी बताओ, पेनेसिया का बताओ। पैन इज ऑल, पैन इंडिया, ऑल ओवर इंडिया, ऑल इंडिया, बताइए। ओके, नहीं बता रहे हैं तो लिख लीजिए। पैन इज ऑल, नो, सो पेनेसिया इज अ क्योर ऑल, हर मर्ज की दवा इज अ पेनेसिया। याद रखना ये एक्चुअली काम आता है, आरसी में भी आ चुका है, नॉट, इट वाज नॉट लाइक द टॉपिक वाज नॉट पेनेसिया, बट कॉन्टेक्स्ट में आया है, क्रिटिकल रीजनिंग में बहुत बार आता है। सो पेनेसिया इज a cure all, something that can cure everything। In reality, there's nothing like a panacea, but uh, metaphorically हम बोल सकते हैं या फिर contextually बोल सकते हैं।
लाइक आई कैन से पैरासिटामोल इज माई पेनेसिया, मुझे जो भी बीमारी होती है पैरासिटामोल से ठीक हो जाता है. सो दैट्स द पेनेसिया फॉर मी. फॉर सम पीपल, और मे बी वाटर, और मे बी टी. ओ गॉड, टी इज द पेनेसिया. हेडेक होता है तो चाय पियो, ठीक हो जाता है. थकान होती है तो चाय पियो, ठीक हो जाता है. वॉमिटिंग होता है तो चाय पियो, ठीक हो जाता है. सो टी इज अ panacea it seems. You guys give me an example. What is a panacea for you? How would you use that in a sentence? Waking up early morning is panacea as per my parents. Oh wow, you are so right. But unfortunately it never worked for me. ये इतना अच्छा हैबिट होता है जो कि आप सबको इनकलकेट करना चाहिए, और मैं भी कभी ना कभी तो करके ही रहूंगी. Yes, yes. Actually, the morning air is very nice, no? So morning air is a panacea as well. Perfect. अब बताइए, पैनोरमा तो सबको पता है, तो आप तो बता ही दो. What is the meaning? Sunil, what is the meaning of panorama? Because I mean, in your cameras, on your phones, you have that panoramic view, no? That option. So what is panorama? Pan, all. Yes, all view. Correct. Unbroken view of an area. So yes, literally all view. Unbroken view of an area is panorama. Pantheism बताइए. Because this root theo, God, is also given here. So pantheism क्या होगा? The belief that everything is actually नहीं, not exactly religion for all. It's more like the belief. जैसे कि मोनोथीज्म क्या होता है? वो रिलीजन जिसमें एक गॉड में विश्वास करते हैं. पैंथीज्म होता है जहाँ पे बिलीव करते हैं दैट the entire universe is God, or everything in the universe is God. That kind of a religion is pantheism. All right, लिख लीजिए. Pantheism is where one believes that the entire universe is God or everything is God. Hinduism में कहते हैं कि भगवान कण कण में है, so even that would come under pantheism. Hinduism वैसे polytheism में भी आएगा, where one, where there's belief in multiple gods, वो भी आ जाएगा. ठीक है. All right. Okay, Kushagra, you're saying I should read Rigved. So, why are you recommending it? मतलब कि कुछ तो सोच के अभी किया होगा ना recommend, जब हम pantheism discuss कर रहे हैं. अरे बताओ क्या सोच के किया, मतलब why, like what aspects of it? Okay, contradictory है. All right, all right. देखिए, ठीक है, तो थियो में अभी ऑफ कोर्स पैंडेमिक तो डिस्कस करने की जरूरत ही नहीं है. पैन में अब ये वर्ड एक्सप्लेन करना ही नहीं पड़ता है. ओके, बट या थियो पे अगर हम आए तो देख लेते हैं. लाइक आई सेड, मोनोथीज्म इज अ रिलीजन विद दिस बिलीफ इन वन गॉड. तो इस्लाम हो जाता है मोनोथीज्म में, इस्लाम आता है, क्रिश्चियनिटी आता है. Hinduism can serve as examples of a lot of words pertaining to God, because Hinduism is multifaceted. You know, polytheism, Hinduism is an example of polytheism, where of course Hindus believe in many gods, है ना? बहुत सारे गॉड्स में बिलीव करते हैं, पर हिंदूज में कुछ हिंदूज होते हैं जो एक ही गॉड में बिलीव करते हैं, तो वो मोनोथीज्म में भी आ जाएगा. और पैंथीज्म, क्योंकि हिंदुज्म में ये भी माना जाता है कि गॉड इज एवरीवेयर, यूनिवर्स इज गॉड, तो वो पैंथीज्म में भी आएगा. अच्छा, बाय द वे, पैंथीज्म का एक सिनोनिम है ओमनीथीज्म, तो वो भी आप लिख लीजिएगा. ओमनी से एक और वर्ड, ओमनीथीज्म, इट्स अ सिनोनिम ऑफ पैंथीज्म. ऑलराइट. अब पॉलीथीज्म, ठीक है, मल्टीपल गॉड्स में बिलीव.
ये बताइए थियोलॉजी क्या होता है, व्हाट इज थियोलॉजी? LOGY वी नो इज स्टडी, इन मेजोरिटी ऑफ द केसेस LOGY का मतलब होता है स्टडी, करेक्ट? यस तन्मय। सो थियोलॉजी, यस शगुन, राइट। थियोलॉजी इज स्टडी ऑफ रिलीजन और गॉड, स्टडी ऑफ रिलीजन और गॉड। ये सब्जेक्ट पढ़ के बहुत सारे लोग प्रीस्ट बनते हैं, या फिर इवन yeah, that's what they become usually. So that's what theology is. Theocracy बताइए, आप सबको पता है, think about this: democracy, autocracy, CRACY means governance. So what is theocracy? और एग्जाम्पल भी दो, very relevant in today's world. Yes, right. Theocracy is governance in the name of religion or God. Governance in the name of religion or God. ठीक है, दैट इज थियोक्रेसी, रिलीजन या गॉड के नाम पे गवर्न करना। तो नहीं, नॉर्थ कोरिया वुड नॉट बी द राइट एग्जांपल हियर, क्योंकि आपने लिखा है कि नॉर्थ कोरिया में क्या, नॉर्थ कोरिया के रू क्या लिखा है नॉर्थ कोरिया के लिए? can't see it. One of you have written something. ओके, नहीं, नॉर्थ कोरिया नहीं होगा, क्योंकि वहां पे किम जोंग यूंग जबरदस्ती अपने आप को गॉड की तरह ट्रीट करवाता है, बट आई मीन लाइक he says that love me, everybody should worship me, but no, that's not exactly what theocracy is. Governance in the name of religion or God, जैसे कि you guys, some of you have written, अभी तालिबान कर रहा है, शरिया लॉ लेके आ रहा है, और ये कह रहा है कि जो भी रूल अप्लाई करता है कह देता है कि कुरान में लिखा है, भले ही ना लिखा हो फिर भी बोल देता है। तो दैट इज थियोक्रेसी, गॉड के नाम पे। ऐसा नहीं है कि रियलिटी में गॉड आके रूल कर रहे हैं, नहीं, गॉड के नाम पे या रिलीजन के नाम पे रूल करना। सो दैट इज थियोक्रेसी। तालिबान इज एक्सट्रीम थियोक्रेसी, गॉड के नाम पे दे आर ट्राइंग टू इम्पोज रूल्स। यप। और नॉर्थ कोरिया में जो है वो डिक्टेटरशिप ही है, इट्स डिक्टेटरशिप लाइक इट वाज इन जर्मनी विथ हिटलर। ऑलराइट, चलिए। ओके, नाउ लुक एट दिस वर्ड purge, PURGE, which means clean, और पहला word actually purge ही है। So what does it mean? Purge actually means to clean or to cleanse everything, पूरी तरह से clean कर देना, that is to purge. To clean thoroughly is to purge. अगर आपने लिख लिया हो then we will move on. Purgatory, purgatory क्या होता है? Does anybody know the meaning? Purgatory होता है ऐसा situation जहाँ पे आप suffering को endure करते हो, पश्चाताप करने के लिए। That is purgatory. Any situation where you endure, where you tolerate suffering, to kind of purge yourself, अपने आप को साफ करने के लिए। Okay, so please write it down. Any situation where suffering is endured, ENDURED, particularly as part of a process of redemption. So any situation where suffering is endured, particularly as part of process of redemption. Redemption मतलब हो सकता है हमने कोई पाप किया हो सकता है ना किया हो, हम लोग कहते हैं ना कि शायद जाने अनजाने में कुछ पाप हो गया हो। तपस्या, तन्मय इज गिविंग एन एग्जांपल, तपस्या इज पर्गेटोरी, यस इट इज। अगर इस बिलीफ से कर रहे हैं कि कुछ हमने अगर कोई गलती की वो धुल जाए, वो माफ हो जाए, और इसलिए तपस्या कर रहे हैं, तो दैट वुड बी पर्गेटोरी। फिर ये एग्जांपल शायद हमने पहले लिया था। देखो हिंदुइज्म में, एक्चुअली हिंदुइज्म में हम गंगा नहाते हैं एंड हम पर्ज हो जाते हैं, ठीक है, पर्गेटोरी तक जाने की जरूरत नहीं पड़ती है, कोई ज्यादा अपने आप को मारने वारने की जरूरत तो नहीं पड़ती है।
Islam में there is one festival where people kind of like yeah, they kind of endure some suffering, some they lash, they use lashes on themselves, है ना? So that is purgatory, कि खुद को मार रहे हैं ताकि जो भी पाप वाप किया है वो फिर मिट जाए या धुल जाए, दैट इज purgatory. क्रिश्चियनिटी में ऐसा कुछ बिलीफ है कि मरने के बाद बिफोर गोइंग टू हेवन बीच में आता है ये फेज आता है जहाँ पे आपको करना पड़ता है, अपने आप को क्लीन करना पड़ता है इन वे, मे बी यू नो, मे बी बाय एंड्योरिंग सर्टेन पनिशमेंट्स, एंड दैट प्लेस इज पर्गेटोरी. ठीक है. नहीं, chastity is a very different word. It has a different meaning. Chastity is somebody who is chaste, somebody who's pure. All right, somebody who has not indulged in sexual intercourse. That kind of a person would be chaste. Expurgate. Expurgate is basically to edit out. देखो, purge का मतलब ही होता है clean. तो expurgate होता है to edit out, हाँ? Not just to edit out unwanted things. So expurgate is used for works of art. Like it can be used for books. कि बुक्स में कुछ अनवांटेड है उसको निकाल दिया, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एक्सपर्गेट. मूवी में कुछ अनवांटेड है उसको निकाल दिया, दैट इज एक्सपर्गेट. तो उसको सफाई की, मूवी की या सफाई की किताब की. तो लिख लीजिए, टू एडिट आउट अनडिजायरेबल इन्फो. टू एडिट आउट अनडिजायरेबल इन्फो. आपने लिख लिया होगा, देन आई विल गिव यू एन एग्जांपल ऑफ एक्सपर्गेट. देखो, अफगानिस्तान के बारे में तो आप सबको पता है, बट ईरान ईरान की कहानी भी बहुत अच्छी नहीं है. सो लाइक वी हैव डिस्कस्ड अर्लियर, आई रिमेम्बर मे बी क्या कर रहे थे हम, एडिटोरियल एनालिसिस कर रहे थे, तो हमने अफगानिस्तान की बात की थी जो एडिटोरियल में दिया था. उसके बाद मैंने आपसे ये भी डिस्कस किया था कि किस तरह से अफगानिस्तान इन 1960s 1970s, इवन आई थिंक इन 1980s इट वाज अ प्रोग्रेसिव सोसाइटी. फिर तालिबान आ गया और हालत खराब कर दी. ईरान भी एक्चुअली पहले प्रोग्रेसिव था. ठीक था, सब कुछ ठीक था, इंडिया की तरह ही चल रहा था पहले. अफगानिस्तान वाला ही सीन है, बाद में वही एक्सट्रीमिस्ट रूलर्स आ गए ईरान में भी. तो पहले सब ठीक चल रहा था, यू नो, नॉर्मल लाइक थिंग्स आर इन इंडिया, यू नो, लाइक इक्वालिटी है. जिसको पढ़ाई करना है वो पढ़ाई करता है, औरत हो या आदमी हो. जिसको कॉलेज जाना है वो कॉलेज जाते हैं, जिनको काम करना है वो काम करते हैं. फ्रीडम ऑफ चॉइस है, ईरान में भी था. पर फिर एक्सट्रीमिस्ट गवर्नमेंट आई ईरान में और काफी ज्यादा अफगानिस्तान टाइप के ही रूल्स लागू हुए. एक्सट्रीमिज्म आया. तो उनमें ये भी था, यू नो, एन एग्जांपल वाज दे आल्सो स्टार्टेड एक्सपोगेटिंग अ लॉट ऑफ बुक्स. बहुत सारा वेस्टर्न टेक्स्ट, मतलब लाखों चीज वो कहते थे कि ये अनवांटेड है या गलत बातें लिखी हैं किताबों में, तो हर किताब को एक्सपोगेट किया था. मतलब अगर किसी किताब में कोई स्टोरी में कोई एस्पेक्ट है, इवन यू नो नथिंग डर्टी, इवन नॉर्मली यू नो गेज या लेस्बियन का नाम भी आ गया, कि अ गर्ल और अ बॉय इज इन लव विद अ बॉय, ऐसा कुछ आ गया, तो वो पूरा पूरी किताब का जहां जहां वैसी चीजें होंगी, आई एम नॉट इवन सेइंग एनीथिंग डर्टी, नॉर्मल स्टफ, वो सब पूरा निकाल देते थे किताबों से. तो मतलब बड़े बड़े वॉल्यूम्स, इतने 4-4 पेज की किताबें बच गई थी, यू नो, बिग वॉल्यूम्स टर्न इनटू लाइक लीफलेट्स और बुकलेट्स. That's what they did. And this is just an example. They expurgated a lot of stuff. They expurgated a lot of stuff from books. क्योंकि उनके हिसाब से हर चीज अनवांटेड था. मतलब पेंटिंग, अगर बुक का मेन कैरेक्टर पेंटिंग करता हो तो वो भी अनवांटेड है, क्योंकि यू कांट पेंट, आई मीन पेंटिंग इज नॉट अलाउड एज पर रिलीजन, बिकॉज देन यू आर ट्राइंग टू, रिप्रेजेंटेशनल पेंटिंग इज नॉट अलाउड बिकॉज यू आर ट्राइंग टू कॉपी वॉज गॉड हैज ऑलरेडी मेड, तो तुम गलत काम कर रहे हो, पाप है ये. तो अगर कोई किताब लिखा है और उसमें मेन कैरेक्टर आर्टिस्ट है, तो वो भी एक्सपगेट कर दिया जाता था. तो किताब कुछ भी बचा नहीं था वहां पे, हर किताब के 4 पन्ने ही बचे थे. So that is what had happened. All right. So I hope you guys will remember expurgate. Um, Indian context में कुछ हुआ था, but honestly I don't remember the exact क्या हुआ था. If you guys remember, news आई थी. I'm not even sure कितने साल पहले. Um, उस समय 5 साल पहले, 4 साल पहले, I don't remember, but I think Aditya Thackeray, he was trying to come into limelight then, and he decided कि महाराष्ट्र में, मुंबई में, इंग्लिश लिटरेचर में क्या तो भी पढ़ाया जा रहा था, एंड ही डिसाइडेड कि वो ऑफेंसिव है. मुझे बिल्कुल याद नहीं है कि क्या था,
कॉन्टेक्स्ट क्या पढ़ाया जा रहा था, बट देन दे स्टार्टेड रिमूविंग इट फ्रॉम द बुक्स। वो करने के लिए वैंडलिज्म सब कुछ हुआ, सो दे आल्सो स्टार्टेड एक्सपरगेटिंग द बुक्स। उस समय ये एक्सपरगेट वर्ड बहुत आया था न्यूज़पेपर्स में। नाउ द प्रॉब्लम इज आई डोंट रिमेम्बर कि व्हाट वर दे एक्सपरगेटिंग। ऑल राइट, आप लोग रिसर्च करना और फिर बताना बाद में। अब मुझे इसके ये जितने भी वर्ड्स हैं इनके मीनिंग्स बताइए। सॉम, SOMN, विच मीन्स स्लीप। टेल मी द मीनिंग्स ऑफ दीज फोर वर्ड्स। Insomnia, somniloquy, somnolent, somnambulist. Yes, right, Shagun. Insomnia is lack of sleep in the sense the inability to sleep. कि आपको नींद नहीं आती है, यू सफर फ्रॉम दैट प्रॉब्लम जहां आपको नींद नहीं आती है, दैट इज इंसोम्निया, नॉट एबल टू स्लीप। आई सफर फ्रॉम द ऑपोजिट ऑफ इट, ऑलवेज वांटिंग टू स्लीप। आप में से किसी को इंसोम्निया है? होपफुली नहीं ही हो। So not able to sleep is insomnia. Somniloquy. Okay, all right. Very good, Tanmay. Somniloquy is talking in sleep, right? When you are asleep and you talk, नींद में बोलना is somniloquy. Correct, perfect. और बताइए। LOQUY, that relates to talk or to speak. So that's why. Next, somnolent. Yeah, somnolent is sleepy. Correct. Somnolent is sleepy. Sleepy. जब नींद आए तो we are somnolent. या हम सब, हमको हमेशा नींद आती है तो हम क्या सोमनोलेंट हैं। स्लीपी, दैट्स वन मीनिंग। ठीक है। और एक पुराना मीनिंग भी है, बट अभी अभी तो देखो, अभी स्लीपी है तो सोमनोलेंट है। ओल्ड इंग्लिश में जो चीज से नींद आती थी उसको भी सोमनोलेंट बोलते थे। स्लीप इंड्यूसिंग, उसको भी सोमनोलेंट बोलते थे ओल्ड इंग्लिश में। अभी प्राइमरली स्लीपी। ठीक है। एंड व्हाट इज द लास्ट वन? सोमनैम्बुलिस्ट। Very good. Sleepwalking. Somnambulist is one who walks in his or her sleep. Amble, AMB relates to walk or move. AMB relates to walk or to move. अच्छा देखो, पैथ हम पहले कर चुके हैं तो आई एम नॉट ड्वेलिंग ऑन इट। ठीक है। एम्पथी होता है सिंपथी प्लस द एबिलिटी टू कीप योरसेल्फ इन अदर पर्सन शूज एंड फील व्हाट दे आर फीलिंग। अपने आप को दूसरे की जगह पे रख के फील कर सके हम उन्हें जो फील होता है, दैट इज एम्पथी। एपथी इज नो कंसर्न, नो फीलिंग्स। सिंपैथी आप सब जानते हो। और एंटीपैथी इज नेगेटिव फीलिंग्स, लाइक हॉस्टिलिटी इज एंटीपैथी। नेगेटिव फीलिंग्स, एंटीपैथी। चलिए, आप में से, अच्छा मैं आगे के लिए बता रही हूँ, शायद आपने अभी नहीं किया होगा।
whenever we study words, नो जब भी हम क्लास में वर्ड्स कर रहे हो, हमेशा लिखो उन वर्ड्स को और नंबर देते जाओ, राइट डाउन द नंबर्स, 1 2 कितने वर्ड्स किए, ठीक है। जैसे कि आज हमने नहीं किया, बट व्हेन वी डिड मैल, तो मैल के वर्ड्स किए, उसके सिनोनिम्स, मलाइन जब किया तो सिनोनिम में विलिफाई, स्लैंडर, या फिर आज क्या कर रहे थे, बेलिकोज किया तो बेलिजरेंट, क्वारलसम भी आ गया, पग्नेशियस, ट्रक्यूलेंट भी आ गया, तो वो सब नंबर नंबर इट डाउन, दैट विल गिव यू एन आइडिया ऑफ हाउ मच डिड यू लर्न। सेकेंडली, वरना क्या होता है कि एकदम रैंडम लर्निंग हो जाती है, एक उसमें नंबर पुट करो तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस भी आता है, एंड यू फील बेटर एज वेल कि अच्छा इतने वर्ड्स तो सीख लिए। उसके बाद है कि वो वर्ड्स को थोड़ा दिमाग में चलाते रहें, सेंटेंसेस बनाते रहें। यू कैन राइट डाउन द सेंटेंसेस और यू कैन जस्ट मेक द सेंटेंसेस इन योर हेड। सो किसी ने काउंट किया क्या, हाउ मेनी वर्ड्स हैव यू डन? चलिए ये वर्ड्स देख लीजिए। PHIL रिलेट्स टू लव। सो बिब्लियोफाइल कौन होता है? आप सब, ऑल ऑफ यू, बिकॉज ऑल ऑफ यू लव बुक्स। बिब्लियोफाइल इज वन हु लव्स बुक्स। Is any, वैसे seriously, is anybody among you a bibliophile, like you really love to read? कोई है क्या आप में से a bibliophile, one like really loves to read? कोई आंसर नहीं आ रहा है तो आगे का वर्ड देखते हैं। Philologist is one who, actually philology is study of language, ठीक है। And how does it relate to love? Because usually it is used for somebody who also somnophile. Okay, yeah, that many of us are. So yeah, word lover who is scholar of language. So philologist is used for somebody who studies languages but also who loves words, and that is why studies languages. So please write it down. Philanthropist तो पता ही है, one who loves mankind, hence he or she does a lot of charity. Philosopher is somebody who loves wisdom. और philodendron is a type of a tree. उसको love trees भी बुलाते हैं because they curl up while growing, as if they are embracing or hugging. Hmm? Philodendron. इसका तो आई वुड सजेस्ट कि आप एक बार गूगल पे पिक्चर भी देख लीजिएगा, लाइक लुक एट अ पिक। राइट, चलिए अब लास्ट, फिर से थोड़ा ग्रामर, क्योंकि ग्रामर करते रहना है, हाई टाइम आ चुका है, बहुत ग्रामर पढ़ना है। क्योंकि आप लोग केवल कैट नहीं लिखोगे, और दूसरे एग्जाम्स में ग्रामर इज अ सेक्शन वेयर यू कैन स्कोर, because once you have practiced enough grammar, it doesn't take time to solve those questions. So it helps you save time. So you have to study grammar. Okay, चलिए कहाँ थे हम ग्रामर के क्वेश्चंस में? ये कर लिया था ना, सब कर लिया था यहाँ, किया था, राइट। राइट, ठीक है। ओके, ट्राई आउट क्वेश्चंस 1 to 8। बस आज के लिए इतना ही, अब मैं आपके आंसर्स का वेट करूंगी, और आपको कुछ और क्वेश्चन अगर हो तो बताना, बट ऑल्सो एट द सेम टाइम कीप ट्राइंग दीज क्वेश्चंस। व्हाट इज वेरी डिफिकल्ट तन्मय? Oh, you are saying the answer. I was like, is very difficult, yeah. Right. It shouldn't be are very difficult, it should be is very difficult to get young children to swallow pills. Because हम ये नहीं कह रहे कि pills difficult है, ये action जो है to get them to swallow the pills. तो ये action difficult है, correct, is very difficult. Very good.
Okay, the second one. देखो, अगर आप ये करते हो कि बोथ हटा दो, तो it's not like the absence of access ramps for wheelchairs in public buildings और restaurants, दोनों में से कोई एक नहीं causes difficulty. Difficulty दोनों ही जगह होती है, तो both रहने दो और हटा दो. It should be and. Whenever we use both के साथ क्या यूज करते हैं? And. पूरा लिस्ट हमने लिखा था ना, either or, neither nor, both, and, scarcely के साथ when, ये पूरा लिस्ट हमने किया था. All right, third try कीजिए. He said that if he were me, he would certainly undertake it. Would correct है क्योंकि ये देखो हाइपोथेटिकल है ना, he were me. He will undertake it तो तब होगा जब सच में, I mean ये सच में हो ही नहीं सकता है, right? He can never be me, right? तो will नहीं होगा, would is fine. For example, hypothetical situation. If I played for the Indian cricket team, ठीक है, अगर मैं इंडियन क्रिकेट टीम के लिए खेलती या खेलता, इंडिया विल विन नहीं होगा, इंडिया वुड विन होगा, क्योंकि हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, तो विल नहीं आता है हाइपोथेटिकल में. बट देन एरर क्या है इन द थर्ड वन? नहीं, वॉज नहीं होगा, क्योंकि जब हाइपोथेटिकल सिचुएशन होता है, इमेजिनरी सिचुएशन होता है, तो नो मैटर व्हाट द, तब सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट भूल जाओ. तो नो मैटर व्हाट द सब्जेक्ट इज, टू बी वर्ब में हमेशा वर यूज होगा. मतलब इज, एम, आर नहीं आएगा, वॉज नहीं आएगा, हमेशा वर आएगा. जैसे कि कोई कहता है कि अगर मैं इंडिया का प्राइम मिनिस्टर होती तो, इफ आई एम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, नहीं. इफ आई वॉज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, नहीं. इफ आई वर द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, इफ आई वर गॉड, हाइपोथेटिकल सिचुएशन में वर. फिर क्या गलत है? आई होप यू गाइस रिमेम्बर कि, अच्छा, ये मैंने पहले पढ़ाया आपको कि टू बी वर्ब में, आज नहीं पढ़ाया, पुराने वीडियोस में आपको मिलेगा. टू बी वर्ब में क्या क्या आता है? इज, एम, आर, वॉज, वर. फिर मैंने आपको पढ़ाया था कि टू बी वर्ब के बाद, ओ गॉड व्हाट हैपेंड, अरे व्हाट हैज हैपेंड टू माय पेन. ओके, फिर मैंने पढ़ा था कि टू बी वर्ब के बाद इफ अ प्रोनाउन कम्स, ओके, आई होप ऑल ऑफ यू आर लिसनिंग, then it's always in the object. No, it's always in the subject form. What's the name? कोहतूर ना, कोहतूर, ये समझ आ रहा है? प्रोनाउन का सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट फॉर्म बहुत बार बताया है, जैसे आई इज सब्जेक्ट, मी इज ऑब्जेक्ट. पॉइंट मैंने ये आपको पढ़ाया था कि टू बी वर्ब के बाद प्रोनाउन हमेशा सब्जेक्ट फॉर्म में आता है. इफ यू गाइस रिमेम्बर, फॉर एग्जाम्पल, दिस इज मी नहीं होगा, दिस इज आई होगा. इट, जो हम कहते तो है इट्स मी, पर वो गलत है, इट इज आई सही है. ये सब हमने एक क्लास में बहुत डिटेल में पढ़ा था. एंड it's very confusing because we incorrectly use the object form every time. So if I were him नहीं होगा, if I were he होगा. जिन लोगों ने ये अटेंड किया था उनको तो एटलीस्ट ध्यान होना चाहिए. He said that if he were me, no, if he were I. To be verb के बाद प्रोनाउन सब्जेक्ट फॉर्म में आता है. सुन के भले ही गलत लगे, बट सही है. क्या सुन के गलत लग रहा है? व्हेन यू हियर इट, इट साउंड्स रॉन्ग, बट इट्स नॉट रॉन्ग, इट्स करेक्ट. इफ ही वो आई, नॉट ही वो मी. काफी बार बताया मैंने आपको ये. Of course, I mean, even I don't follow it in spoken English because then everybody would doubt my English कि गलत बोल रही है. पर of course आपको मैं गलत पढ़ाऊंगी नहीं.
So from the examination perspective, you need to know this. फोर्थ बताइए, कुछ डाउट है थर्ड में तो पहले बताओ और उसके बाद फोर्थ पे मूव ऑन टू द फोर्थ वन. नहीं है तो फोर्थ देखो. The reason tourism in Singapore has dropped by 3 or 4% is because prosperity. देखो the reason आ चुका है तो फिर because नहीं आएगा क्योंकि because also gives the reason, repetition हो जाएगा. तो is that means कि you know tourism सिंगापुर में गिरा है इसकी वजह है कि, reason is वजह, that is कि. You won't say इसकी वजह है क्योंकि. All right, so because would be a repetition because you already had the word reason. The fifth one. चलो आई विल लेट इट बी. नाउ यू गाइज आर नॉट आंसरिंग एट ऑल, तो मैं अब आगे नहीं बढ़ती हूँ. इसको अभी यहीं पे रेस्ट करने देते हैं और आपको भी रेस्ट करने देते हैं क्योंकि आज भी हम स्पॉट द एरर कर रहे हैं यूट्यूब पे एट 9 PM. सो लेट्स ड्रॉप इट फॉर नाउ. ऑल राइट, बट या रिमेम्बर यू हैव टू प्रैक्टिस इट. पढ़ाई तो करना ही है, टाइम पास केवल करना हो तो अलग बात है. आई मीन वी हैव टू स्टडी, राइट? यू हैव टू डू दीज क्वेश्चंस. और करते रहो. हम बहुत सारा इसलिए कर रहे हैं सो दैट यू काइंड ऑफ इंटरनलाइज इट ऑल. कुछ टाइप के क्वेश्चंस हम बहुत रिपीट कर चुके हैं. वी आर नॉट डूइंग द सेम बट सेम कॉन्सेप्ट्स. ये आई मी ये सब मैंने बहुत बार बताया है कि टू बी के बाद क्या आएगा. सो ऑल्सो स्टार्ट वॉचिंग द प्रीवियस वीडियोज. सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट वाला देखिए प्लीज, प्रोनाउंस वाला देखिए, गेट वेल एडजेक्टिव्स वाला देखो. ये सब टेंसेस, सबसे ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं. टेंसेस हमने पूरा किया था कैट फंडा पे, यूट्यूब पे. क्या नाम है, हैशटैग डेस्टिनेशन 100% उस पे जाके देखो, टेंसेस का पूरा पढ़ लो. सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट किया हमने, यूट्यूब पे किया. फिर यहाँ स्पेशल क्लासेस में भी किया है, प्रोनाउंस किया है, एडजेक्टिव्स किए हैं. प्लीज प्लीज स्टडी इट ऑल. ऑल राइट, अभी यहीं पे रहने देते हैं. अभी रात को 9 बजे करते हैं कैट फंडा, 9 PM. अगेन मोर ग्रामर टुडे. ठीक है, कल से विल टेक अ ब्रेक फ्रॉम ग्रामर फॉर सम डेज बट यू हैव टू डू इट. ऑलराइट, दैट्स द पॉइंट. ओके देन, अभी के लिए इतना ही रखते हैं. चलिए, मेरा कोड याद रखना, शर्मा जी. ओके, यू नो व्हाट यू आर सपोज्ड टू डू विद द कोड. ऑलराइट, एंड देयर आर सर्टेन थिंग्स. Yeah, this is the code. I have told you about the subscription plans as well. And if any friend of yours joins or downloads the Unacademy Learning app, ask them to use my code. Okay, see you tonight at 9 PM on YouTube on the Cat Funda channel. And of course, at 8 PM, there is a plus class as well where we are doing read and comprehension basics. So that is a plus class at 8 PM. And after that, 9 PM, YouTube class. Most welcome, Tanmay. Take care. Bye bye and see you just in a bit.